ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के बीच तोहफों के लेन देन की और इसे रोकने के लिए लाई जा रही आचार संहिता की। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, कैन यू हियर मी? या I'm Major Gurdeep Singh Samra. I'm calling from Ludhiana. ओके। Now my issue is whatever we may talk till the cows come home. There is one reality which is in our society that all professions, especially there should be three, should not be so commercialized and so rotten. One is teacher, because teacher is a representative of God, and second is the doctor, who is a representative of God, and third is the judge. He is also a representative of God. After teacher is the guru, and doctor ke baad is only God, and judge ke baad is only God. Doctors are so commercialized, they can mislead you, they can misguide you, and they can cheat you. I think all these discussions, unless we look within, there's nothing that we can do about it. हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। मैं लॉर्ड स्पीति से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, बी फार्मेसी करने के बाद हाँ जी आगे कितना स्कोप है हिमाचल प्रदेश में? हाँ जी, ये मुझे लगता है किसी और डिस्कशन में आपका सवाल हम लेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, I do totally disagree with Mr. Vikas on two fronts. When he says that conference कह के जाते हैं, घूमने जाते हैं, that is totally wrong. There are, ये आप पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे कह रहे हैं? पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पे, and it is well substantiated. जब भी हम एक कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हैं, वो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका पर्पस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड। इफ यू सी यूएस, यूके, लेकिन विकास ने जो कहा है उसकी हिमायत तो मिनिस्ट्री ने जो आज इशू किया है if you are sponsoring a person and somebody is saying that he is going for a conference, it can be well investigated, well substantiated, because there are international forums which hold certain conferences to generate latest medical literature to or medical knowledge. हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। And US, UK, Australia, even in India, there is a rule now that a doctor has to attend minimum hours of continuous medical education. ठीक है। So these conferences are held on those, and any doctor who is going on that, I'm not saying that he has to be sponsored by, I'm saying he is going. He has to get a certificate from that he has to mark his attendance, attend the conference, then he gets a certificate that he attended these many hours. It is counted per hour. It's not that the days. That in 5 days conference, if you have CME hours of 40 hours, you will be given whatever hours you have attended, those sessions. So you have to mark your attendance. So it's very, very foolish to say that somebody goes on a conference behalf and goes if after 5 o'clock the conference is over, somebody is going for sightseeing and you say that he's going to roam about, that is one which I debate and which I rebut very, very strongly. Secondly, if some doctor is requesting कि मेरी family, why you are supporting it? Why can't you refuse it? ये मुद्दा है। डॉक्टर साहब, हम आपकी फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो मेरे चैम्बर में आने की जरूरत नहीं है। No, it's totally wrong. It's totally wrong. I told in the beginning also, any doctor will write your medication if it is quality. I agree with you. If it efficacious. I have met many leading personalities of the world, of India in particular. उन सबका पहले कंडीशन ये होता है कि हम आपकी मेडिसिन यूज करेंगे, क्वालिटी होगी, हम यूज करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट नेगोशिएट विद द लाइफ ऑफ अ पर्सन और विद आवर प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस रहेगी तभी कुछ होगा, जब प्रैक्टिस हम खराब कर लेंगे कुछ नहीं होगा। मेडिसिन पहले चलनी चाहिए, लाइफ जो। लेकिन अगर 3-4 कंपनीज हैं जो एक ही किस्म की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनमें ये कंपटीशन रहेगा ही कि कौन किसको कैसे लेके जाता है। देखिए, ये डिफरेंशिएशन हर जगह पे आता है। आज अगर किसी कंपनी ने भेजा है, इतने रुपए लगा दिए, फैमिली के साथ भेजा है, वो कंपनी अफोर्ड कर सकती है, उसको वो एक ऑब्लिगेशन नहीं लगता है। उसने आउट ऑफ कर्टिसी अगर ये किया है तो हम उसे अपोज नहीं कर सकते। अगर ये आपको कर्टिसी नहीं लगती है, आपको ये एक बर्डन लगता है, लेकिन जो कर्टिसी है वो मरीज के ऊपर भारी पड़ी है।
नहीं, मरीज के ऊपर अगर भारी पड़ी है, वही बात मैं आपको कह रहा हूं, आप इनको क्यों सपोर्ट करते हैं? अगर आप कहते हैं कि ये चेंबर में आने से मना कर देते हैं, अगर आपकी क्वालिटी पे आपको भरोसा है तो ठीक है ना। डॉक्टर, अगेन आई वुड से कि डॉक्टर भी समझदार है, आप ये चीज को समझिए। जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी कहा कि ठीक है भगवान का रूप कहते हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते बिकॉज डॉक्टर्स। लेकिन अगर केंद्रीय सरकार को ऐसा कानून लाने की जरूरत पड़ रही है, जो अभी 6 महीने के लिए वॉलंटरी है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टैट्यूटरी बनाया जाएगा, जरूरत तो कारण रहा होगा। बिल्कुल मैं उस पे आ रहा हूं। अगर केंद्रीय सरकार को इसकी इतनी जरूरत लगी थी तो वो जरूरत पहले कहां थी? एक रियलिटी शो में जनता तक आवाज पहुंच गई, जनता ने आवाज उठाई, तो ठीक है जी अब इसको जरूरी लागू करिए। पहले अगर केंद्रीय सरकार को ये जरूरी लगा था तो केंद्रीय सरकार पहले इसके लिए क्यों नहीं कुछ करती थी? कानून तो ये पहले भी प्रपोज किया गया था। हाँ जी, रवि आपको क्या लगता है कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी? अगर थी तो क्यों जरूरत थी इसकी? देखिए, कानून की जरूरत रही होगी तब सरकार ने इस कानून बनाया है, लेकिन इस कानून को अभी तो 4 स्टेट्स के हेल्थ बीट कवर करते हैं। मैं बिल्कुल कवर करता हूं। मैं आपको, मेरा इसमें सबमिशन ये है कि सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे तो सरकार की सोच हो सकती है कि उनको अभी कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्या या ऐसे कोई रियलिटी शो के बाद ये अचानक ट्रिगर हो गया इशू या नहीं हो गया। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो कानून बनाने की बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं दबाव में आ सकती है, बजाय सरकार ये कानून बनाने के कि आप। लेकिन ऐसी कौन सी जो प्रेशर ग्रुप हो सकता है जो ऐसा कानून? फार्मा कंपनीज ही रही होंगी, फार्मा कंपनीज ही रही होंगी, अदरवाइज सरकार ये भी कर सकती है। उन सरकार, लेकिन फार्मा कंपनीज तो कमा रही हैं जी, कमा रही हैं, तो उन कंपनियों के ऊपर एथिक अपना वो जेनरिक मेडिसिन बनाने का भी तो दबाव आ रहा है, उन्हीं कंपनियों का दबाव भी आ रहा है। उनको एक अपनी पैरेलल यूनिट खड़ी करनी पड़ रही है जो साथ में ब्रांडेड मेडिसिन कर रही है, साथ में जेनरिक कर रही है। उन्हीं वही कंपनियां हैं जिनके ऊपर ये दबाव भी है कि आप सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराएं। रवि, एक जो सवाल मैं आपको बतौर पत्रकार पूछना चाहता हूं वो ये है कि जिस किस्म के माहौल में हम ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक गिफ्ट के लेन देन का एक हिसाब किताब चलता है, उसी तरह का जो है हिसाब किताब वो और भी कई प्रोफेशंस में चलता है, जिसमें जर्नलिज्म भी आता है, जिसमें और भी बहुत सारे आते हैं। ये बाकियों पे भी ऐसी कोई बात होनी चाहिए आपको? मैंने तो आपसे कहा इससे पहले कि जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं, आप देखिए उनकी वाइफ साथ में जा रही है, बाकायदा इसके लिए एक वैग बना हुआ है, वाइफ एंड गर्लफ्रेंड एसोसिएशन बनी हुई है, वो अपनी वाइफ को और गर्लफ्रेंड साथ लेके जाते हैं। इंटरनेशनल ये ट्रेंड है, आप उसको क्यों नहीं रोक रहे? लेकिन उसमें तो कानून के तौर पे जो जैसे बीसीसीआई है, बीसीसीआई आपको परमिट करती है। जब तक बीसीसीआई जो पत्नियों को नहीं परमिट करती थी तब तक प्लेयर्स अपनी पत्नियों को नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन अभी परमिट करती है। इसमें देखिए, इसमें आरोप को, इसमें फिर एतराज किसको है? मान लीजिए एक डॉक्टर एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, 3 दिन की सीएमई है वो, उसके मालूम है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 40 घंटे या मुझे 50 घंटे उस 3 दिन में मुझे सीएमई अटेंड करनी है मुझे, और बाकी के 2 दिन मैं अपने शेड्यूल के रखता हूं। तो उसमें इस बात का एतराज किसे है कि आप बाकी के टाइम के लिए अपने बच्चों को या पत्नी को साथ में ले जाएं? एतराज सिर्फ इस बात पे है कि जो पैसा इस तरह से खर्चा जा रहा है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अनएथिकली खर्च रही हैं और अनएथिकली वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन से लिखवाती हैं। मुझे इसी बात का एतराज मुझे लगता है कि ये फिर बात वही घूम के वहीं आती है कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेरे और मेरे परिवार को, एज ए डॉक्टर अगर मैं हूं तो मेरे परिवार को आप एयर टिकट देकर या बाहर घुमाने को लेकर मुझसे दवा लिखा पाएंगे और मैं किसी सब स्टैंडर्ड कंपनी की सब स्टैंडर्ड दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दूंगा, तो मैं अपना करियर और अपना प्रैक्टिस और सब कुछ खत्म कर रहा हूं। 1-2 साल में ऐसा कर सकता हूं, तीसरे साल मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी 2 सेंटेंसेस। जो सरकार ने अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट लाया है, आई वेलकम इट एंड इट्स वेरी गुड स्टेप, बट इसका एक सोल्यूशन हमें बड़े दर्जे पे करना है। वी नीड टू हैव ए नेशनल ड्रग पॉलिसी. Generic medicine is a very good solution. We should invite all good companies who make standard drugs to make those generics, and doctors should be advised and forced to write those generics. All these evils will go away. हाँ जी, And that has to be provided. मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा नुक्ता है इस बहस को समेटने के लिए। आप सभी इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपहार का अर्थशास्त्र मरीज की जेब पर भारी पड़ता है, गरीबी की हालत में सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है। जाहिर है इस रुझान पर रोक तो लगनी ही चाहिए और यकीनन ये सख्ती से लागू होनी चाहिए। आखिर कंपनियों और डॉक्टरों के मुनाफे के लिए आवाम की सेहत को ताक पर नहीं रखा जा सकता। इसी दलील के साथ हम इस बहस को खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।